میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں عزیز بیلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کی قسط 111 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیز بے نوا کے فن کو دنیا بھول جائے گی اگر اس نے کبھی بازار فن میں شاعری بیچی. جی ہاں ناظرین، ہمارے نام سے منسوب ایک اور جشن کی ریکارڈنگ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. لیکن پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ادارہ فکر و فن شعر و سخن، ادارہ سیدھی بات اور ان اداروں کے وابستگان کی جانب سے سال نو کی مبارکباد پیش ہے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگی ہمارے پروگرام فکر و فن شعر و سخن کی قسط 103 جسے ہم نے 5 مارچ 2023 کو نشر کیا تھا، جو ایک تاریخی پروگرام ثابت ہوا تھا جسے آج بھی یوٹیوب پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اس میں 2 روزہ عالمی جشن عزیز بیلگامی کی روداد پیش کی گئی تھی اور یہ جشن ڈیلس امریکہ میں معز الدین معیز صاحب کی سرکردگی میں منایا گیا تھا. اللہ کا شکر کہ 2023 میں بھی یعنی 26 دسمبر 2023 کو ایک اور آن لائن عالمی جشن عزیز بیلگامی کی تقریب منعقد ہوئی، جس پر ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. الحمدللہ یہ پروگرام بھی تاریخی ثابت ہوا. ہم جشن کا مکمل پروگرام لے کر حاضر ہیں اور آج ہم اس کا پہلا حصہ پیش کر رہے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پروگرام بھی بیلگام کے لیے، بنگلور کے لیے، کرناٹک کے لیے اور ہندوستان کے لیے باعث صد افتخار ہے. جیسا کہ ہم نے گزشتہ جشن عزیز بیلگامی کے تناظر میں 5 مارچ کو یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ جنوبی ہندوستان کی ریاست کرناٹک کے ضلع بیلگام کے ایک دور افتادہ گاؤں کڑچی کے ایک ادنا شاعر عزیز بیلگامی کے اعزاز میں امریکہ جیسے عالم انسانی کے ایک متمدن و ترقی یافتہ ملک کے شہر ڈیلس میں جشن عزیز بیلگامی کے نام سے آن لائن جشن منایا گیا. اور آج بھی ہم یہی بات دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر کرناٹک کے اس خاکسار شاعر کو یہ اعزاز بخشا کہ عالمی سطح پر نیو یارک، کینیڈا، پاکستان، اٹلی، دہلی، کولکاتہ، کراچی، لاہور، فیصل آباد، حیدرآباد، بدایوں، بریلی، الہ آباد اور سہسرام بہار جیسے شہروں سے شعراء کرام اور سامعین نے ستائشوں اور محبتوں سے نوازا اور ہمارے شہر، ہماری ریاست اور ہمارے ملک کی شان بڑھائی. ہم پھر کہیں گے کہ اگر اسے اپنے منہ میاں مٹھو بننے پر محمول نہیں کیا جائے گا تو یہ خبر اصلاً ایک امانت ہے جسے آپ تک پہنچانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. ناظرین، ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی شاعر و فنکار کی زندگی میں ہی اس کی پذیرائی کے دن دکھائے. بے حسی کے اس ناقدر شناس دور میں بزم اصحاب قلم، بدایوں، ہندوستان اور گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کا یہ اقدام ان کے ظرف عالی کا غماز ہے. انہوں نے ہماری زندگی میں ہی قدر شناسی کی ایک قابل تقلید
مثال قائم کر دی ہے۔ ہم ان اداروں کا دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے جشن عزیز بلگامی کی جھلکیوں کا ویڈیو ملاحظہ کرتے ہیں، اپنی گراں قدر آرا سے ضرور نوازیں۔ عزیز بے نوا کے فن کو دنیا بھول جائے گی، عزیز بے نوا کے فن کو دنیا بھول جائے گی، اگر اس نے کبھی بازار فن میں شاعری بیچی، اگر اس نے کبھی بازار فن میں شاعری بیچی، اگر اس نے کبھی۔ تمام معزز احباب کو آج کی اس خوبصورت بزم میں، جس کو جشن عزیز بلگامی کا نام دیا گیا ہے، اس میں آپ تمام احباب کو کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس تقریب سعید کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں تنویر پھول صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کی۔ بہت بہت شکریہ حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیات 21 تا 24 یہ سماعت فرمائیے۔ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم۔ اللہ کریم قبول و مقبول فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں آگے۔ نہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں جناب عزیز بلگامی صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ نعت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ مطلب کیا ہے؟ جی عطا جی انشاءاللہ۔ ہوں خوگر توحید طلبگار محمد صلی اللہ علیہ خوگر توحید طلبگار محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، کھلتے ہیں موحد پہ ہی اسرار محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، کھلتے ہیں موحد پہ ہی اسرار محمد۔ ہر گاؤں میں ہے آپ کے کردار کی خوشبو، ہر شہر میں موجود ہے گلزار محمد، ہر شہر میں موجود ہے گلزار محمد۔ ایک جنبش مشگاہ میں سلجھ جائے مسائل، ایک جنبش مشگاہ میں سلجھ جائے مسائل، دنیا ہو اگر حاشیہ بردار محمد، حاشیہ بردار محمد۔ عرض کرتا ہوں تلوار سے اسلام کی نسبت ہے تہمت، تلوار سے اسلام کی نسبت ہے تہمت، واللہ ہے کردار ہی تلوار محمد۔ کیا بات ہے، کیا بات، اچھا شعر۔ مجھ کو نہیں کچھ نعت کی شتبد مگر احباب، مجھ کو نہیں کچھ نعت کی شتبد مگر احباب، کہتے ہیں کہ ہوں میں بھی قلم کار محمد۔ سبحان اللہ، شکریہ۔ کہتے ہیں کہ ہوں میں بھی قلم کار محمد۔ آخری شعر ہے اور گرہ بھی ہے۔ تم اسوہ حسنہ پہ نہ پہرے یوں بٹھاؤ، اسوہ حسنہ پہ نہ پہرے یوں بٹھاؤ، عالم کے لیے
आम है दरबार मोहम्मद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक उनके लिए बेशक आम है दरबार दरबार मोहम्मद। मोहम्मद। मक्ता पेश कर रहा हूँ। मुमकिन है अजीज आपको जन्नत में सुना जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुमकिन है अजीज आपको जन्नत में सुना जाए, एक नात की ख्वाहिश का हो इजहार मोहम्मद। सुभान अल्लाह। साहब आपको आज की इस खूबसूरत शाम में दिल के था गहराइयों से खुशामदीद है। आज की शाम अजीज बिलगामी साहिब के नाम और ये शाम मुनक़िद की जा रही है बज़्म असहाब कलम बदायूं और ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली की जानिब से, और मैं आप लोगों का खाकसार और खिदमतगार AR सागर। आज की इस तकरीब का मैं बाकायदा आगाज करना चाहूँगा, उसके लिए मैं मुल्तमिस हूँ, इजाज़त का तलबगार हूँ मजलिस सदारत से। अगर मजलिस सदारत मुझे इजाज़त दे तो मैं प्रोग्राम शुरू करवाऊँगा। बहुत शुक्रिया, हुजूर सलामत रहें। तो तमाम मोअज़्ज़िज़ अहबाब खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस खूबसूरत बज़्म के मुंतज़मीन कुछ यूँ हैं, डॉक्टर कमाल अख्तर साहिब हैं, सदर हैं बज़्म असहाब कलम बदायूं के, और मुंतज़िम आला हमारे चौधरी मोहम्मद नवाज गिलियाना साहिब हैं, और सरपरस्त आला हमारी मोहतरमा निसर फरमाएंगे जनाब तनवीर फूल साहिब, जो कि अमेरिका में मुकीम है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अब हमारे जनाब साले इच्छा साहिब कनाडा से, जनाब हसनैन बुखारी साहिब पाकिस्तान से, रशीद शेख साहिब शिकागो से, डॉक्टर मुख्तार हयात साहिब कराची पाकिस्तान से, जनाब कुमार दहलवी साहिब दिल्ली इंडिया से, जनाब मोहसिन रजी अलवी साहिब न्यूयॉर्क से, डॉक्टर रजी अमरोही साहिब अमरोहा इंडिया से, और करामत गौरी साहिब कनाडा से, और जनाब नासिर अली सैयद साहिब पिशावर पाकिस्तान से। इनमें से काफ़ी सारे जनाब सदूर तशरीफ ला चुके हैं, कुछ थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। इनके अलावा और भी दीगर रफ़ाक़ाए कराम हमारे साथ जुड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आज की ये खूबसूरत शाम है जनाब अजीज़ बिलगामी साहब के नाम। मैं सबसे पहले अजीज़ बिलगामी साहब का मुख्तसर सा तारुफ पेश करता हूँ। थोड़ा सा तारुफ है मुख्तसर पराए में। आपका नाम अजीज़ुद्दीन है, जबकि कलमी नाम अजीज़ बिलगामी है। इसके अलावा आपके मशागिल शायरी नासर निगारी, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज बराए खवातीन शिकारपुर के प्रिंसिपल के ओहदे पर भी फायज रहे। आपके पसंदीदा असनाफ सुखन है गज़ल, नज़्म, सनत तौशीह, मजमून निगारी, तनकीद व तबसरा निगारी, सवाने निगारी, फिल्म डबिंग, इशाअत कुतुब, तमाम प्रिंटिंग, पब्लिशिंग और शोरा के इंटरव्यू लेना। आपका कलाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुतअद्दिद अखबारात की ज़बान है। आपकी 6 अदद तसानीफ मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें हर्फ सौत, सुकून के लम्हों की ताजगी, जंजीरे दस्तपा, दिल के दामन पर, नकदो इंतकाद, सवाने अब्दुल करीम पारेख। आपको अब तक मुतादिद इनामात और एजाजात से नवाजा जा चुका है, जिनमें लीगल राइट्स काउंसिल रांची झारखंड का मैन ऑफ द लिटरेचर अवार्ड 2015 में, अब कर्नाटक उर्दू अकादमी बराए शायरी इसका अवार्ड को 2016 में मिला, और तकरीबन 150 इदारों के अवार्ड्स और असनाद कर्नाटक यूनिवर्सिटी की एक तालिबा की डिग्री हासिल की है, जिनकी तहकीक का मौजू था अजीजुद्दीन अजीज बिलगामी की हयात व खिदमत। छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ था मेरे पास। तो मैं बिला तमीद मुल्तमिस हूँ आज की इस खूबसूरत बज़्म की मजलिस सदारत में जनाब सदर तनवीर फूल साहिब से, हजूर तशरीफ लाइए, अपने कलिमात से नवाजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सागर साहब। आप सबको सलाम कर बारे दिगर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं भाई अजीज बलगामी साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके जश्न पर वो इससे बहुत ज़्यादा का मुस्तहक हैं। बहुत बहुत मुबारक हो अजीज भाई। तो इनसे तो बड़े पुराने ताल्लुकात हैं हमारे, उर्दू बंधन के में 17-18 साल तो ही गए होंगे जब से किए थे। तो बहरहाल को बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनके लिए मंजूम खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये समाज फरमाइए। आपको जश्न ये मुबारक हो प्यारे भाई अजीज बिलगामी, मतलब कीर्तन की शक्ल में। आपको जश्न ये मुबारक हो प्यारे भाई अजीज बिलगामी, आप उर्दू अदब के आशिक हैं, महवर फिक्र बेहद इस्लामी। अदब के आशिक हैं, महवर फिक्र बेहद इस्लामी। आदाब। शायरी आपकी बहुत आला, आप मुखलिस ज़बान उर्दू से। शायरी आपकी बहुत आला, आप मुखलिस ज़बान उर्दू से। शेर कहते हैं पाकीज़ा, दिल है मसरूर जिनकी खुशबू से। अरे वाह,
شاعری آپ کیا کی بات بہت اعلیٰ، آپ مخلص زبان اردو سے شعر کہتے ہیں، آپ پاکیزہ دل ہے مسرور جن کی خوشبو سے، آپ کو جشن یہ مبارک ہو پیارے بھائی عزیز بلگامی، آپ اردو ادب کے عاشق ہیں محور فکر بے حد اسلامی۔ ارے واہ، کیا بات ہے، فکر و کیا فن بات آپ کا ہے یاد ہمیں کتنا پیارا یہ سلسلہ بے شک، فکر و فن آپ کا ہے یاد ہمیں کتنا پیارا یہ سلسلہ بے شک، کتنے لوگوں سے کی ملاقاتیں کوششیں آپ کی ہیں یہ انتھک، فکر و فن آپ کا ارے ہے واہ، یاد ہمیں کتنا پیارا یہ سلسلہ بے شک، کتنے لوگوں سے کی ملاقاتیں کوششیں آپ کی ہیں یہ انتھک، آپ کو جشن یہ مبارک ہو پیارے بھائی عزیز بلگامی، آپ اردو ادب کے عاشق ہیں محور فکر بے حد اسلامی، ارے واہ، آپ پر حق یہ عنایت ہے اس نے بخشا ہے لہن داؤدی، آپ پر حق یہ عنایت ہے اس نے بخشا ہے لہن داؤدی، حمد اور نعتیں خوب کہتے ہیں آپ پائیں خدا کی خوشنودی، آہا، آپ یہ عنایت ہے اس نے بخشا ہے لہن داؤدی، حمد اور نعتیں خوب کہتے ہیں آپ پائیں خدا کی خوشنودی، آپ کو جشن یہ مبارک ہو پیارے بھائی عزیز بلگامی، ارے آپ واہ، سب کے عاشق کیا ہیں بات، محور فکر بے حد اسلامی، ماشاء اللہ، کیا کہنا، آداب آداب، آپ پر ہو رہی ہے پی ایچ ڈی، آپ کی خوب صنعت توشی، آپ پر ہو رہی ہے پی ایچ ڈی آپ کی خوب صنعت توشی، درس نیکی کا سب کو ہیں دیتے فہم واہ، قرآن ہے آپ کی ترجیح، درس نیکی کا سب کو ہیں دیتے فہم قرآن ہے آپ کی ترجیح، آپ کو یہ مبارک ہو پیارے بھائی کیا بات فکر بے حد کیا ہے، کہیں، پھول کی ہے دعا یہی رب سے منزل ارتقا ہی پاتے رہیں، پھول آہا، کی ہے دعا یہی رب سے منزل ارتقا پاتے ہی رہیں، پاتے رہیں، اپنے افکار سے سدا یوں ہی بزم اردو کیا ادب بات، واہ، سجاتے رہیں، اپنے افکار سے سدا یوں ہی بزم اردو ادب واہ، سجاتے رہیں، آمین، آپ کو جشن یہ مبارک ہو پیارے بھائی عزیز بہت خوب، بلگامی، آپ اردو ادب کے عاشق ہیں محور فکر بے حد آہا، اسلامی، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا شعر تھا، کیا بات، بہت خوب، بہت اعلیٰ حضور سلامت رہیں جناب عزیز بلگامی صاحب کے نام، یہ کہاں کھینچ کے تقدیر میری لائی ہے، یہ کہاں کھینچ کے تقدیر میری لائی ہے، میرے شعروں کی نہیں فن کی پذیرائی ہے، واہ، کیا کہنا، اچھا کہا ہے، واہ 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 واہ، سامنے آگ ہے اور پیچھے میرے کھائی ہے، کیا سامنے آگ ہے اور پیچھے میرے کھائی ہے، اب کہنا، تیرا دور سے دیدار بھی رسوائی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، لب پہ توحید کا اعلان بھی ہے دعویٰ بھی، لب پہ توحید کا اعلان بھی ہے دعویٰ بھی، اور اغیار کے در پر بھی جبیں سائی ہے، تیری عظمت کے مقابل میرا سجدہ کیا ہے، عظمت کے مقابل میرا سجدہ کیا ہے، کوہ احسان تیرے شکر میرا رائی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت شعر ہے یہ، بھیڑ کے بیچ کھڑا ہوں میں یہ احساس لیے، بھیڑ کے بیچ کھڑا ہوں میں یہ احساس لیے، میری تقدیر میں تنہائی ہی تنہائی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنا، گو کہ مشہور ہوں مقبول نہیں ہوں پھر بھی، گو کہ مشہور ہوں مقبول نہیں ہوں پھر بھی، کیا یہ کم ہے کہ میری خود سے شناسائی ہے، کیا کثر نفسی ہے بھائی، کیا کثر نفسی، میرے اشعار میں کچھ زخم مہکتے ہیں عزیز، میرے اشعار میں کچھ زخم مہکتے ہیں عزیز، یہ سبب ہے کہ میرے فن پہ بہار آئی ہے، یہ سبب ہے کہ میرے فن پہ بہار آئی ہے،
सामीन मुकर्रम, आप तमाम मुअज़्ज़िज़ अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जनाब साले अच्छा साहब तशरीफ ला चुके हैं और उन्होंने एक मकाला पढ़ना है आपके हवाले से। तो बिला तमीद मैं मुल्तमिस हूँ हुजूर साले अच्छा साहब से, हुजूर तशरीफ लाइए, अपना मकाला से नवाजिए। बहुत शुक्रिया। सागरमियाँ खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। आमीन हुजूर सलामत। मकाले का उन्वान है जश्न अजीज बलगामी, दामन दिल तकरीज। हदीस कुदसी है कि अगर तमाम समुद्रों की रोशनाई और तमाम अशजार के कलम बना दी जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ मुमकिन नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक। हदीस कुदसी के बाद क्या किसी इंसानी में की ताकत है कि अल्लाह की तारीफ बयान कर सके? मगर फिर भी इंसान अपने रब की हम्दो सना में रब्बुल इंसान रहता है। रब्बुल आलमीन की हम्द करने का हक सिर्फ उसी तरीके से अदा करना मुमकिन है कि कुरान का मुतालिया गहराई और गिराई से किया जाए। बेशक बेशक। अजीज बलगामी साहब की तहरीर करदा कुरान की मंजूम तफहीम का मुतालिया करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कुरान का मुतालिया गहराई और गिराई से करने के बाद भी कुरानुल हकीम फुरकानुल हमीद की तौशीही अशआर का वजूद अमल में आया है। और ये कोई क्या लिखे अपने खालिक के बारे में, जो मालिक है, खालिक है, रब्बे जलील है, ला शरीक है, जो करम का इब्तिदा है, जो करम की इंतहा है, शहनशाह लौलाक है, जो रब्बे कायनात है, पालने वाला है, फिर भी बड़ा बेनियाज है। क्या लिखूं, क्या बात, अल्फाज कांप रहे हैं, जुमले खौफजदा हैं उस ला शरीक की हैबत से। सुभान अल्लाह। अजीज बलगामी साहब ने अपनी कुरान की मंजूम तफहीम में इन्हीं जज्बात का इजहार फरमाया है। उर्फी शिराजी के बकौल नात कहना गोया तलवार की धार पर चलने के मुतारादिफ है। जरा सी लग्जिश आफियत खराब कर सकती है। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि बा खुदा दीवाने बाश बा मोहम्मद होशियार बाश। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तो दीवानगी काम आ सकती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होशियार रहना जरूरी है। अल्लामा मोहसिन काकोरवी के यहाँ नात गोई की शफाफियत का यह आलम था कि वो पहले गुस्ल फरमाते और पाक व साफ कपड़े पहनकर और होश व खिरत से बेगाना होकर नाज शरीफ कहने में मशगूल हो जाते थे। और इसी होश व खिरत और बेगानगी के आसार अजीज बिलगामी साहब की नात गोई में भी नजर आते हैं। इन्हें मुद्दाए फैयाद से निहायत आला और मुतन्नौ सलाहियतें आता हुई है। नात गोई के फन्नी पहलू कुछ भी हो, इसकी बुनियाद जज्बे पर होती है। शेर मोहब्बत की बात है, और जब इस मोहब्बत की बात में अकीदत और फिक्र की रसाई भी शामिल हो जाए तो नातिया शेर जन्म लेता है। सुभान अल्लाह। अजीज ने एक हसास दिल के साथ ज़हन रसा भी पाया है। शऊर की पुख्तगी ने इन दोनों सलाहियतों को जिला दी है और इनके नातिया कलाम में असर अंगेजी पैदा की है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद इंसान के दिल में पाकीज़ा जज्बात और अफकार पैदा करती है और पाकीज़ा अफकार से पाकीज़ा अशार उभरते हैं। ये एक नाजुक और कठिन मरहला है। यहाँ फूंक कर कदम रखना पड़ता है। इस मुकाम पर पहुंचकर जज्बात में खो जाना और फिर एहतराम की दामन को थामे रखना बहुत मुश्किल होता है। एहतराम के साथ जज्बात की रोकथाम ही से अच्छी नात वजूद में आती है और अजीज को कुदरत ने यही जोहर अता किया है। सुनीद है कि 27 दिसंबर को अजीज बलगामी की सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 800 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब जिक्र मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजरा भी होने जा रहा है। मैं अपनी जानिब से और तमाम हाजिरीन महफिल की जानिब से बलगामी साहब को हदिया तहनीयत पेश करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत जनाब। आइए अब हम अजीज बलगामी साहब की शायरी की दिगर असनाफ पर गुफ्तगू करते हैं। अता कीजिए। शायरी हमदर्दी है, इंदमाल है उन जख्मों का जो हम आए दिन खाते रहते हैं। शायरी आजादी है, कुछ नहीं तो फरियाद की आजादी है। बेशक। मजदूर भारी बोझ ढोते हुए एक जबान होकर बार बार चंद बोल दोहराते हैं, असल में वही शायरी है जो जिंदगी का बोझ ढोने का हौसला बख्शती है।
जिंदगी अगर एक निशात है, मुहिम जोई है, तो दूसरी तरफ मासूमियत और मजलूमियत का शहकार भी। शायरी इन्हीं का बयान है, शायरी की रिवायत हसीन और सिर्फ सच्चाई है। अजीज बलगामी की शायरी का अहम वक्फ उनका मकसदी होना है। जो चीज इन्हें अपने हम असरों में मुमताज करती है वो यह है कि इनकी तमाम शायरी का महवर और मंबा इंसानियत है। आज इस खाकसार का मौजूद गुफ्तगू अजीज बलगामी की शायरी मजमुआ दामन दिल है। दामन दिल के मौजूद वही हैं जो आम इंसान की जिंदगी से मुताल्लिक होते हैं। इनकी गजल की सबसे बड़ी खसूसियत इसका गहरा और लतीफ तासुर है, जो जज्बे की ऊपरी सतह के बजाय अंदरूनी सतह में ऐसी लतीफ अट्टाश पैदा करता है जिसको महसूस तो किया जा सकता है, बयान करना मुश्किल है। इसलिए कि वो बराह रास्त कोई बात नहीं करते, बल्कि उन मकामात को छूकर गुजर जाती हैं। और अच्छी गजल की यही खसूसियत भी है कि वो इशारा करती है, तफसील बयान नहीं करती। आप फरमाते कि हम गजल की बज़्म में शाइस्तगी के साथ थे, हम गजल की बज़्म में शाइस्तगी के साथ थे, शाइस्तगी के साथ थे, पाकीज़गी के साथ थे। तारुक दुनिया न थे, उजलत पसंदी थी जरूर। तारिक दुनिया न थे, उजलत पसंदी थी जरूर। हम कलंदर लोग जैसे खुसरवी के साथ थे। सोच के बोलने और बोलकर सोचने में जो फर्क है वही जूदगोई और कमगोई में है। लेकिन ऐसा कम ही होता है कि जूदगो शायर भी कमगो शोरा की तरह अच्छी शायरी करे। अजीज बलगामी जूदगोई के बावजूद अच्छी शायरी का सलीका रखते हैं। और जैसा कि हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि इनकी शायरी का बुनियादी वस्फ उनका मकसदी होना है, और उसके साथ साथ सफाई और सुथराई भी उनके कलाम में शामिल है। इनकी शख्सियत की मतानत और तवन्नाई गजलों और नज़्मों में नुमाया है। बेशक हयात जादे पुरपेश से गुजरती है, ये रह गुजर है मुकद्दर, गुजर कर देखते हैं। अरे जो फनून लतीफ़ा में फन सुखनवरी एक बुलंद पाया फन है, जिसकी तामीर और तश्कील में चंद जरूरी अनासर कारफरमा होते हैं, जिनके रब्त और ज़ब्त से फन को आराइश मिलती है। जिस तरह एक परिंदा टिक्का टिक्का जमा करके अपना आशियाना तामीर करता है, वैसे ही एक तख्लीक़कार अपने फन की सरमायाकारी करता है। वो अपने एक एक तख्लीकी फन पार को जमा करके बिल आखिर उसे एक किताब की शक्ल देता है। फन के बारे में हमारे क्या है, इन्हें खबर ही नहीं फन का मर्तबा क्या है। अजीज फन को वो अहले हुनर के देखते हैं। अरे ये कहाँ खींच के तकदीर मेरी लाई है, ये कहाँ खींच के तकदीर मेरी लाई है, मेरे शेरों की नहीं फन की पजीर आई है। क्या बात। और मेरे अशार में कुछ जख्म महते हैं अजीज, जिसका भी जिक्र हमारे सागर मियां ने भी शेर पढ़ा था कि मेरे अशार में कुछ जख्म महते हैं अजीज, ये सबब है कि मेरे फन पे बहार आई है। और फन की तनवीर अदाकार की ताबिश से नहीं, फन की तनवीर अदाकार की ताबिश से नहीं, हर चमकती हुई शय होती नहीं है सोना। खूबसूरत शेर। किताब लिखना आसान काम नहीं, किताब लिखना आसान काम नहीं है। इस मकसद के लिए लहू और बदन जलाना पड़ता है, तब जाकर कहीं तख्लीकी अमल की आबियारी होती है। शायर आमिल और फितरत मामूल है। शायर फितरत की नकाली नहीं करता है, मानवियत अता करता है। शायर फितरत से गुफ्तगू करता है। फितरत सवाल है और तमाम फनून लतीफा उसका जवाब। यह मौसम फिक्र दानिश का है या साजिश का मौसम है, ये मौसम फिक्र दानिश का है या साजिश का मौसम है। यहाँ क्यों पाए इस्तक़लाल में लर्जिश का मौसम है, अगरचे हर तरफ इल्हाद की आतिश का मौसम है। ज़मीर व क़ल्ब पर ईमान की बारिश का मौसम है। अजीज आसाइश किरदार को बर्बाद कर देंगी, हमारे शहर में दौलत की अफजाइश का मौसम है। इशारा जितना बलीग होगा, शहर में इतनी ही मानवी वसअत और तहदारी भी होगी। जिंदगी की मामूली जरूरतों के मसाइल और उसका अहद का दाखिली कर्ब, लेकिन कहीं भी अफराद को तफरीद नहीं। और ये तवाज़ुन की शायरी को वो तवन्नाई बख्शता है
जिंदगी के गिरावने और मशक शुदा पहलुओं पर अजीज की निगाह है। राहजन कायद बने और रहबरी होने लगी, राहजन कायद बने और रहबरी होने लगी, गुम रही होने लगी तो बेकली होने लगी। आज के जुल्म से फिरौन भी शर्माता है, क्योंकि ये कत्ल के मंजर से कहीं आगे है। अहले मनसब से खुदा पूछ रहा है ये अजीज, इतना मजलूम था किस दौर में बंदा मेरा। अरे वाह, अजीज बलगामी का जितना कलाम हमें मुयस्सर हुआ, उसका मुताला हमारे लिए हैरत अंगेज साबित हुआ कि उनके यहाँ गजल की रवायती मदामीन, आशिक व माशूक की वारदातें, लबो रुखसार की बातें, या गुलो बुलबुल और कफस व सैयाद की दास्तान और हिजरो विसाल के फर्जी किस्से तकरीबन नापेद हैं, या कम से कम हमारे मुताले में नहीं आए। अजीज साहब मिजाजन मुतशर्रह और मजहबी हैं, मुमकिन है उनकी तबीयत भी ऐसे मजामिन से बगावत की जानिब माइल हो, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अजीज साहब जज्बात के शायर जरूर हैं, इनकी शायरी एक सीधे सादे इंसान के जज्बात की सीधे सादे इजहार की शायरी है। इनका कलाम पढ़ते हुए कहीं ये महसूस नहीं होता कि शायर किसी और दुनिया का रहने वाला है, या उसकी फिक्र और मसाइल एक आम आदमी की फिक्र और मसाइल से अलग है। चुनाचे अजीज बलगामी की गजल पढ़ते वक्त कारी कभी उनकी दुनिया में खुद को अजनबी महसूस नहीं करता। देखिए वो हम सबकी जज्बात की तर्जुमानी कैसे करते हैं। हम पे एहसान ना करना, तेरा एहसान होगा। हम पे एहसान ना करना, तेरा एहसान होगा। अपनी आंखों में ना मोहसिन की नजर पैदा कर, कट तो सकता हो दुकान से ना झुकता हो कभी, सर कोई ऐसा भी एक शुरीदा सर पैदा कर। बताए कुव्वत ईमान का जोया कहाँ हूं मैं, तहज्जुद की नमाजों में अभी रोया कहाँ हूं मैं। मताए जीत थी मेरी इमामत सारे आलम की, मताए जीत थी मेरी इमामत सारे आलम की, ना जाने इस मताए जीत को खोया कहाँ हूं मैं। और इसी तरह बहुत से अशार मैंने यहाँ कलम किए हैं। मैंने ये पूरा मकाला ग्रुप में डाल दिया, वहाँ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वक्त की कमी भी होती है और लोग भी हैं यहाँ पर। तो मैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि यहाँ अजीज बलगामी साहब की गजल के एक पहलू की जानिब इशारा जरूरी है। तखल्लुस का इस्तेमाल तकरीबन सभी शोरा गजल पर अपनी मोहर लगाकर अपनी शनाख्त मुतय्यन करने के लिए करते हैं। आमतौर पर मक्ते में शायर कोई बड़ी बात या अमीक ख्याल नहीं पेश करते हैं। इस तरह मक्ता भर्ती के शेर की तरह होकर रह जाता है। शायद यही वजह है कि मुतअद्दिद शोरा ने तखल्लुस तो इख्तियार किया, लेकिन इसके इस्तेमाल का इल्तिजाम अपने गजलों में नहीं बरता। अजीज बलगामी साहब की गजलों के अक्सर मक्ते इस अमूम से मुस्तस्ना हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मक्तों में निहायत नाजुक, दिलफरेब और पुर असर मज़ामिन नज़्म किए हैं। इनकी सलाबत और खूबसूरती पर ना सिर्फ ये कि तखल्लुस के रिवायती इस्तेमाल ने खराब असर नहीं किया है, बल्कि अक्सर मकामात पर तखल्लुस से शेर का हुस्न और शायरियत में इजाफा हुआ है। इसका सबब ये मालूम होता है कि अजीज साहब ने अपने ऊपर ढाल कर बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो हर इंसान की जिंदगी में एक नागुज़ीर हिस्सा है। अपना दर्द, जमाने का दुख, दुनिया की शिकायत, जिंदगी के शिकवे और हकायक उन्होंने निहायत मुयस्सर अंदाज में शेर में समाकर अपने मक्तों को अपने गजलों का जुज़्व लाई उनफक बनाया है। चंद मिसालें दर्ज झैल हैं कि पारसाई रात आई नहीं हमको अजीज, पारसाई रात आई नहीं हमको अजीज, तंग दिल दुनिया हम दरिया दिली के साथ थे। अजीज भी तो तवज्जो का मुस्तहक है जनाब, अजीज भी तो तवज्जो का मुस्तहक है जनाब, तुम अपने तर्ज तगाफुल से उसको खो दोगे। अगर रोने पर आमेदा नहीं दुनिया तो खुशखबरी, अजीज खुश नवा नगमे मुसरत के लुटाता है। और बहुत सारे अशार हैं जिसको मैंने यहाँ नकल किया है उनकी किताब से। अब इन अशार के नर्म और इशारों किनायों में शायर ने दुनिया और दुनिया वालों पर जो लतीफ तंज किया है वो अहले नजर से पोशीदा नहीं है। जबान की ये नरमी और बयान की ये इनकिसारी दरअसल अजीज बलगामी साहब की शख्सियत का अक्स है। वो अपनी जात में ऐसे नरम मिजाज, नरम गुफ्तार
और मुनकसिर मिजाज वाक़या हुए कि अगर इनके शायर में शिद्दत जज्बात या किसी किस्म की करख्तगी महसूस होती तो निहायत हैरत का मकाम होता। अजीजुद्दीन अजीज बलगामी साहब ने कई गज़लें ऐसी मुनफरिद ज़मीनों में कही हैं जिनसे इनकी फितरी शायराना सलाहियत और ज़ौक़ शायरी की तस्दीक व तौसीक होती है। हरचंद के ऐसे किसी सबूत की कोई ज़रूरत अहले फ़िक्र नज़र को नहीं होनी चाहिए। मुनफरिद ज़मीनों में ये गज़लें कारी का दिल बेइख्तियार अपनी जानिब खींचती हैं और इनका तकरीबन हर शेर नज़ीर दिशापुरी की शाहकार फारसी गज़ल के इस मिसरे की फिक्री ताबीर नज़र आता है कि करिश्मा दामने दिल मी कोशत के जहाँ अस्त। अजीज बलगामी साहब ने शायरी की सनफ़ गज़ल में एक तजुर्बा सनफ़ मुश्तरका गज़ल किया है और मौसूफ इस तजुर्बे के मौजूद हैं। इस सनफ़ में गज़ल का मिसरा ऊला अजीज बलगामी साहब का होता है और मिसरा सानी के खालिक कोई और शायर होते हैं। गज़लों के अलावा क़तात और मुतअद्दिद उम्दा और खूबसूरत नज़में कही हैं जिनमें इस्लामी, इस्लाही व समाजी मौज़ूआत को सुमोए बेशुमार मारूफ मंजूबात शामिल हैं जिन्हें बहुत शोहरत से नवाजा गया है। उनमें से चंद नज़मों के उन्वान ज़ैल में दर्ज है। वो आयशा थी जो मेरी माँ थी, जश्न आज़ादी, औरत में हमारे इंसानियत, याद आ रहा है बदर का मैदान बार बार। इसी तरह समाजी मसाइल पर भी अजीज बलगामी की बड़ी गहरी नज़र है। अवामी मौज़ूआत पर की नज़में कहर जबर की बस्ती, मजलूम बेटियां, कोरोना, इलेक्शन, मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह खास आम में मकबूलियत के दर्जे पर फाइज हुई है। इसके अलावा मौका महल को मद्देनजर रखते हुए अजीज बलगामी साहब ने अपने पेशरो, हम असरों और अहबाब की नज़र जो तौशीही नज़मों का नजराना पेश किया है वो काबिल तारीफ है। लेकिन चूंकि इस वक्त तंग दामनी माने हैं और लिहाजा मजीद तफसीलात में जाए बगैर हर्फ आखिर के तौर पर इतना कहना है कि तबसरा या तजिया या तौशीही अल्फाज तख्लीक़कार को हौसला बख्शता है और इसे सोच के नए जावे अता करता है। कलम को ताजगी और तवन्नाई और जिला बख्शने के साथ साथ उसे अपनी तख्लीक पर नजर सानी का मशवरा देता है। अजीजुद्दीन अजीज बलगामी साहब अपनी खुदादात, आला सलाहियतों के साथ मुआशरे को इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर पाकीज़ा ख्याली, शाइस्तगी और फिक्र कुरानी, मेरी मुराद कुरान की मंदूब तफहीम की तरफ है, कुरान पर माइल फरमा रहे हैं। दुनिया इल्म और अदब के अकाबिर दबिस्तान नक़्दो नज़र के शनावरों और ज़ादाए रिश्तो हिदायत के मुसाफिरों में इनका ये अमल कदर व एहतराम की निगाह से देखा जाएगा। मैं मोहतरम अजीजुद्दीन अजीज साहब को उनके जश्न के मौके पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। गर कबूल अख्तर अज़्ज़शर हमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। बहुत शुक्रिया आपकी समाअत का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत मेयारी गुफ्तगू, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों को। अजीज़े बेनवा के फन को दुनिया भूल जाएगी। अजीज़े बेनवा के फन को दुनिया भूल जाएगी। अगर उसने कभी बाज़ारे फन में शायरी बेची, अगर उसने कभी बाज़ारे फन में शायरी बेची, अगर उसने कभी। नाज़रीन, प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपने मुलाहिज़ा फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे हिस्से का इंतज़ार फरमाएं और हमें अपनी गिरा कद्र आरा से नवाजें। आज का हमारा वक्त ख़त्म हुआ, अब अज़ीज़ बलगामी को इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुस्तफ़ा दावत हिदायत की एक हंसी शफक लेकर, मेरे मुस्तफ़ा